So first we will begin with the chemical reaction that involves breaking of oxygen and hydrogen bond in the alcohol, where alcohol shows somewhat acidic character. It releases H plus ion. इसमें आता है फर्स्ट रिएक्शन विद अल्कली मेटल्स. So all those alkali metals, sodium, potassium, lithium, they reacts with alcohol like sodium or potassium, etc. At that time in alcohol का sodium salt या फिर alcohol का potassium salt generate होता है. Actually alcohol neutral compound है और alcohol के अंदर जो acidic strength होता है water से भी कम होता है. So if you compare acidic strength of few organic compound like carboxylic acids, then phenol, and then water, and then it comes to alcohol, तो एसिडिक स्ट्रेंथ इसमें डिक्रीज होती जा रही है. मतलब अल्कोहल वाटर से भी वीक एसिड है. वाटर खुद ऑलमोस्ट न्यूट्रल होता है, बहुत कम केसेस में वाटर H प्लस आयन रिलीज कर पाता है, लेकिन अल्कोहल की एसिडिक स्ट्रेंथ वाटर से भी कम है. तो इन सब के अंदर कुछ ना कुछ एसिडिक स्ट्रेंथ होता है. The acidic strength of carboxylic acid. Carboxylic acid में R, C double bond O, OH. So this hydrogen is strongly acidic hydrogen. OH group का. Phenol, AR, OH. This hydrogen is strongly acidic. सबसे ज़्यादा stronger acidic hydrogen H plus ion. As all acids should release H plus ion. It is in carboxylic acid. Then it is in phenol, and then comes to water. Water is HOH. So this hydrogen, यहाँ मैं partially positive लिख रहा हूँ. Water के अंदर भी कभी कभी H plus ion release होता है, and it shows acidic behavior. And then comes alcohols, ROH. Now you can think this hydrogen can become acidic, but it is least acidic than water. तो alcohol का acidic strength कितना कम रहेगा? How much weak acids they will be? बहुत 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 कम एसिडिक होना चाहिए. अगर मैं इसको डेल्टा पॉजिटिव लिखूं तो इसको डेल्टा डेल्टा पॉजिटिव, मतलब और भी कम पॉजिटिव चार्ज माना जा सकता है. तो सिर्फ और सिर्फ अल्कली मेटल है. ऐसे वीक एसिड्स को चेक करने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग बेस लगता है. सो ओनली अल्कली मेटल्स आर देयर फॉर विच अल्कोहल्स H प्लस विल बी एक्सट्रैक्टेड. अदरवाइज NaOH के साथ, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ ये सब रिएक्ट होते हैं, लेकिन अल्कोहल सिर्फ और सिर्फ अल्कली मेटल से रिएक्ट होता है. सो इफ यू रिमेंबर, कुछ कंपाउंड्स हैं जो कि बेसिक है, जैसे कि NaOH इज बेस. उससे कम बेसिक होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और उससे भी सोडियम बाइकार्बोनेट जो है सबसे वीक बेसिक है NaHCO3, एंड उससे स्ट्रॉन्गर बेस है NaOH, और उससे भी स्ट्रॉन्गर बेसिक होता है अल्कली मेटल्स लाइक सोडियम और पोटेशियम. तो जो एकदम वीक एसिड है वो वीक बेस के साथ बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं होता है. अल्कोहल विल नॉट रिएक्ट विद सोडियम बाइकार्बोनेट, अल्कोहल विल नॉट रिएक्ट विद NaOH, but alcohol will react with, it is the basic strength of few bases. Now if I write कि carboxylic acid कौन कौन से बेस से रिएक्ट हो सकता है. Being a very strong acid, it can react with all category of base. ये एकदम weakest base है और ये एकदम strongest base है. तो carboxylic acid किस किस से रिएक्ट हो सकता है? Carboxylic acid can react with sodium hydrogen carbonate, it can react with NaOH, and it can also react with sodium or potassium metals. Why? Because it is strongest acid, और वो strongest acid हर तरह के बेस से रिएक्टिव है. Then phenol.
Phenols will never react with sodium hydrogen carbonate. They are just reactive with NaOH and sodium and potassium metals. बिकॉज ये कार्बोक्सिलिक एसिड से कम एसिडिक है, तो एकदम वीक बेस के साथ उसका रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो पाता है. देन वाटर इज ओनली रिएक्टिव विथ ओनली सोडियम एंड पोटेशियम मेटल्स. And alcohol is weakest acid in this 4 category, having OH group, and it also reacts only and only with sodium and potassium metals. Being very weakest organic acid, it will not react with the weak base. It will react only with the strongest base like alkali metal. इसीलिए अल्कोहल का OH बॉन्ड ब्रेक करने या फिर अल्कोहल में से हाइड्रोजन निकालने के लिए, अगर अल्कोहल खुद वीकेस्ट एसिड है, इट इज वीकेस्ट एसिड, सो इट विल नीड अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस. बहुत ज्यादा वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बेस विल बी नीडेड, and then only the H plus ion will be taken by that very strong base. और ये काम सिर्फ और सिर्फ सोडियम पोटेशियम मेटल कर सकते हैं, नेवर NaOH KOH और नेवर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट्स. सो इफ यू वांट दिस रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एसिड एंड बेस स्ट्रेंथ, यू कैन कॉपी इट. इसको लिख के ले लो और यहाँ पर नीचे इसका एक ऐसा लिस्ट भी बना लो कि कौन सा बेस किस एसिड से रिएक्ट होता है. फॉर वेरी वीकेस्ट एसिड strongest base is needed, and for very strongest acid all kind of base will react. So let's move to reaction part now. Alcohols are very weakest acid, and strong base like alkali metal can take off or can take away H plus ion from the alcohols. So if alcohol reacts with sodium metal, then इसमें simple acid base reaction होगा और एक salt generate हो जाएगा. When acid and base reacts, then salt is formed. Similarly, when alcohol and sodium reacts, it will form RONA. This is not RONA. It is alkyl oxygen and sodium. यहाँ पर sodium positive ion है and RO is negative ion, and one nascent hydrogen is produced. एक हाइड्रोजन एटम, फ्री हाइड्रोजन एटम रिलीज होता है. इसीलिए सोडियम और अल्कोहल रिड्यूसिंग एजेंट के भी काम में आता है, क्योंकि इससे nascent hydrogen, as you know, all reducing agent gives nascent hydrogen which can be used in the reduction. और अगर मैं यही रिएक्शन दो बार लिखूं 2 molecules के साथ, so sodium alcohol molecule and sodium, now make it twice, 2 molecules and 2 molecules, 2 times of sodium alkoxide will be formed, and ये जो दो हाइड्रोजन एटम्स जनरेट होता है, they are very reactive, they can react and become H2 molecule. So this is RONA, which is called as sodium alkoxide. Sodium alkoxide is sodium salt of alcohol, where sodium is positive and RO is negative group. Oxygen carries negative charge. There is no covalent bond between O and sodium. Oxygen and sodium में कोई covalent bond नहीं है. They are just ions. So it is sodium alkoxide. If instead of sodium, potassium is used, if any alcohol reacts with potassium, then of course again this H plus ion will be substituted by K plus ion and ROK, which is potassium salt of the alcohol, plus nascent hydrogen atom will be released. So it is potassium alkoxide, and if you write this reaction 2 times, twice and twice, so we can write here H2.
इसका एक एग्जांपल, व्हाट इज इफेक्ट ऑफ ethyl alcohol on sodium metal? If the question comes, the effect of ethyl alcohol on sodium metal. On sodium metal. So how to solve? Reactant names are given, both the reactants are given. One is ethyl alcohol, CH3, CH2, OH, and the sodium metal, Na. They will react together. Ethyl alcohol का H plus और हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा, Na plus will acquire the place, और सोडियम का इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन में ट्रांसफर होता है, यानी सोडियम हाइड्रोजन को रिड्यूस करता है. सो H प्लस इज गिवन अवे, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और Na प्लस के फॉर्म में यहाँ कंबाइन होता है, और इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन न्यूट्रल हाइड्रोजन में चेंज हो जाएंगे. सो इट फॉर्म्स CH3, CH2, O, Na and one atom of hydrogen. Write it twice, 2 times, 2 times, 2 times. 2 atoms of hydrogen will become H2. So this is ethyl alcohol which reacts with sodium and forms sodium. अगर इसका नाम नहीं भी आए, so you can write sodium salt of ethyl alcohol. और बट इसका एक्चुअल नेम है, पहले कैटायन का नाम लिखना होता है, पहले पॉजिटिव आयन का नेम, देन नेगेटिव आयन का नेम. सो द पॉजिटिव आयन हियर इज सोडियम and negative ion is ethyl group and oxygen ion, so it is etho oxide. Sodium etho oxide will be the name. So write it down. ये general reactions and chemical equations copy कर लो. The next reaction which involves breaking of oxygen hydrogen bond from alcohol is esterification. Esterification में अल्कोहल और एक दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड रिएक्ट होता है and they forms ester. So few general reaction of esterification. First I am writing, if carboxylic acid R C double bond O OH reacts with alcohol. Now alcohol को उल्टा लिखते हैं, HOR dash. It is a reversible reaction and ये dehydration है. Their OH and OH group loses to remove water molecule. Here water is removed by combination of only hydrogen, only and only hydrogen atom from the alcohol and OH group of the corresponding carboxylic acid. So there is loss of water molecule H2O. and अब जो नया ऑर्गेनिक कंपाउंड जनरेट होगा उसमें एक एसिटाइल ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड के इतने पार्ट को एसिटाइल या कार्बोक्सिल ग्रुप बोल सकते हैं. सो इट इज R C double bond O. It will be attached with alco oxide group O R dash. तो ये कंपाउंड और कार्बोक्सिलिक एसिड में R C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन तक कॉमन है, खाली हाइड्रोजन की जगह यहाँ एक और अल्काइल ग्रुप है. यू रिमेंबर दैट इट इज कॉल्ड एज ईस्टर फंक्शनल ग्रुप. सो ईस्टर इज ऑब्टेन्ड व्हेन अ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल अंडरगोज डिहाइड्रेशन, लॉस ऑफ वाटर. इस रिएक्शन में अल्कोहल से हाइड्रोजन ब्रेक होता है, सो इट नीड्स to break oxygen and hydrogen bond
of the alcohol. Then esterification reaction can also happen with derivatives of carboxylic acid like acid anhydrides. ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसमें दो कार्बोक्सिल ग्रुप, दो एसाइल ग्रुप एक कॉमन ऑक्सीजन से अटैच्ड है. इसको बोलते हैं एसिड एनहाइड्राइड. अगर तुम लोग 11th स्टैंडर्ड का फंक्शनल ग्रुप टेबल देखोगे तो उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड और उससे रिलेवेंट जितने भी फंक्शनल ग्रुप है उसके जितने भी डेरिवेटिव्स हैं वो सब कुछ दिए हुए हैं. राउंड अबाउट वहाँ पे 18 to 20 functional groups mentioned है. So acid anhydride reacts with alcohol again, HOR dash. It is also a reversible reaction. इसमें esterification होता है. इस esterification में remember in this case this part and यहाँ पर as usual oxygen and carbon bond break होने वाला है. So this part will be separated like water molecule. इतना part separate हो जाना चाहिए. So the byproduct obtained will be what? R C double bond O oxygen with the hydrogen. So it will be R C double bond O oxygen and with the hydrogen atom from alcohol, a carboxylic acid. And the rest part will become which thing? R C double bond O and the alkoxy group from alcohol. So that is also ester. Esterification एक रिवर्सिबल रिएक्शन है और ये रिएक्शन वापस रिवर्स हो सकता है. फिर से वाटर मॉलिक्यूल ईस्टर को हाइड्रोलाइज कर सकता है. इट विल ब्रेक अपार्ट इन द कार्बोक्सिलिक एसिड एंड द अल्कोहल. So that is why this is always carried out to shift this reaction, especially in the forward direction. It is carried out in acidic catalyst. So the acid catalyst used here is concentrated sulfuric acid, which is a dehydrating reagent. ये dehydrating reagent water को remove कर देता है, remove करता है और reaction को reverse होने से रोक देता है. Here also acid catalyst H plus ion यानी same sulfuric acid or hydrochloric acid is used as catalyst. And one more derivatives of carboxylic acid is acid chloride, R C double bond O Cl. If it reacts with alcohol, HOR dash, then here also alcohol will release H plus ion and it combines with Cl of acid chloride. The separated part is HCl. In this HCl, hydrogen comes from alcohol and chlorine comes from acid chloride. Then the remaining part will again change into ester. So it is R C double bond O and attached to the alkoxy group OR dash. And इस रिएक्शन में एसिड जनरेट हो रहा है HCl. टू न्यूट्रलाइज इट इसमें pyridine एज अ सॉल्वेंट यूज होता है. pyridine इज बेस और ये pyridine उस HCl को न्यूट्रलाइज करता है. यानी रिएक्शन अगर HCl न्यूट्रलाइज नहीं हुआ it can again react with ester and break them apart in the reactant alcohol and acid chloride. तो रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होने के लिए as it is reversible इसमें HCl को निकालना पड़ेगा. And to remove out HCl, base pyridine base is used which will finish off HCl and reaction reverse नहीं होगा. यहाँ concentrated sulfuric acid will finish off water because it is dehydrating reagent. It will consume all the water and फिर reaction reverse नहीं होगा. So why pyridine? Pyridine is base and it neutralizes all HCl produced. So these are three chemical reaction which are esterification. याद रखना esterification किसका होता है?
ईस्टर फॉर्मेशन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल का एसिड एनहाइड्राइड, जिसमें दो कार्बोक्सिल ग्रुप एक कॉमन ऑक्सीजन से अटैच होते हैं। इसको एसिड एनहाइड्राइड इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये दो कार्बोक्सिलिक एसिड से जनरेट हो रहा है। सी आई विल राइट हियर हाउ this is given the name acids anhydride। if two carboxylic acids, ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड, इफ दे आर डिहाइड्रेटेड, अगर इनका डिहाइड्रेशन हो और इसमें से वाटर सेपरेट हो जाए, सो विच पार्ट विल बी लेफ्ट? आर C double bond O, then this oxygen C double bond O R, यानी दो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलकर एक एसिड एनहाइड्राइड में चेंज हो जाते हैं। सो दिस रिएक्शन जहां पर दो दो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलकर एक सिंगल एसिड एनहाइड्राइड में चेंज होता है, ऐसे प्रोडक्ट को कार्बोक्सिलिक एसिड्स का एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड मतलब लॉस वाटर रिमूव, ड्राई, एनहाइड्रस मतलब जिसमें वाटर नहीं हो। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स में से जब वाटर रिमूव किया जाता है देन दे फॉर्म्स एनहाइड्राइड। सो दिस इज एनहाइड्राइड ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड्स and it is chloro derivatives of carboxylic acid. It is called as acid chlorides. This is just carboxylic acids or it is carboxylic acid. This is carboxylic acid anhydride. This is carboxylic acids chloride. All of them are nothing but derivatives of carboxylic acid reacting with alcohol, और अल्कोहल का H सेपरेट होता है एंड ईस्टर इज फॉर्म्ड। सो ये सारे के सारे रिएक्शन ईस्टरिफिकेशन है, इसमें भी अल्कोहल का OH बॉन्ड ब्रेक होता है। सो राइट दिस 3 जनरल इक्वेशंस। So these are all reactions in which oxygen and hydrogen bond from the alcohol is broken. इसका हम लोग एक दो एग्जांपल्स देखेंगे। What is effect of number 1 acetic acid and methanol? So question can be, what happens if acetic acid and methanol are heated in presence of concentrated sulfuric acid? So if any acid and alcohol reacts in presence of acid, then उनका esterification होता है, they undergoes ester formation. Similarly, दूसरा question, let's take same acid. If acetic acid and ethanol are heated in presence of concentrated H2SO4, so दोनों रिएक्शन में हमें कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल दिया है, उनका स्टेरिफिकेशन लिखना है। लेट्स राइट आंसर्स। एसिटिक एसिड इज इथेनोइक एसिड ऑल्सो, क्योंकि इसमें टोटल 2 कार्बन होते हैं, इथेन का डेरिवेटिव है, द फर्स्ट कार्बन एंड 1 एडिशनल कार्बन। फर्स्ट कार्बन हैव कार्बोक्सिल ग्रुप, इट इज कार्बोक्सिल ग्रुप, सो ये इथेनोइक एसिड है या तो फिर एसिटिक एसिड है। इट इज रिएक्टिंग विद मिथेनॉल, मिथाइल अल्कोहल, अल्कोहल को उल्टा लिखना है उस तरफ से, सो राइट HOCH3,
if any carboxylic acid and alcohol reacts, they undergo a reversible reaction, esterification, जिसमें वाटर एलिमिनेट हो जाता है. वाटर के फॉर्मेशन में हाइड्रोजन कम्स फ्रॉम अल्कोहल एंड OH ग्रुप विल कम फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड. ये आगे जो कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर है वहां ये प्रूव होगा कि वाटर के फॉर्मेशन में हाइड्रोजन, ओनली हाइड्रोजन कम्स फ्रॉम अल्कोहल एंड OH ग्रुप विल कम फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड. नहीं तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि वाटर ही तो फॉर्म करना है, तो वाटर तो ऐसे भी फॉर्म हो सकता था. It can be like this also again, but by mechanism it has been proved that from alcohol only hydrogen comes and from carboxylic acid oxygen and hydrogen both comes. तो ये correct है और ये wrong है. It will be proved in the latter chapter, carboxylic acid, aldehyde, ketone, carboxylic acid chapter में esterification का mechanism है. So let's write the ester form. Here concentrated sulfuric acid is used as water. ये water के removal में help करता है, यानी dehydrate करता है इनको. So it is dehydrating agent. इसका दूसरा भी रोल है, ये इस ग्रुप को ज्यादा रिएक्टिव भी बनाता है. जब तुम लोग मैकेनिज्म पढ़ोगे at that time you will understand it. So if water is removed and taken by carboxylic acid, by sulfuric acid, so there is loss of H2O and then the product obtained will be acetic acid का इतना पार्ट 2 कार्बन और उसमें CH3O अटैच हो जाना है. So it will form CH3, C double bond O and O CH3 plus H2O. So this is the ester obtained. If you change alcohol, then you think इस ester में कुछ चेंज हो जाएगा. अभी इस तरफ 2 कार्बन है ऑक्सीजन के एक साइड में, जहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पार्ट है वहाँ 2 कार्बन है, जहाँ अल्कोहल वाला पार्ट है वहाँ पर एक ही कार्बन है. If alcohol also have 2 carbon, then the ester produced will be different. So CH3, C double bond O, OH, same acidic acid, but now it reacts with ethanol. Ethanol is OH, CH2, CH3, and the catalyst used here is conc, concentrated sulfuric acid. During esterification दोनों के OH functional group से water eliminate हो जाता है. It is helped by dehydrating agent which helps in the removal or in the separation of water molecule, and then CH3 C double bond O is attached to oxygen and ethyl group. CH2 CH3 plus H2O eliminates. तो ये भी एसिडिक एसिड का ईस्टर है, ये भी एसिडिक एसिड का ईस्टर है. इस ईस्टर को हम नाम देंगे मिथाइल एसिटेट. वाई मिथाइल? बिकॉज यहाँ पर ऑक्सीजन पर मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है. सो दिस ईस्टर विल बी कॉल्ड एज मिथाइल एसिटेट. एसिटेट कम्स फ्रॉम द कार्बोक्सिलिक एसिड्स यूज्ड. यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर इथाइल ग्रुप अटैच है. इन ऑल द ईस्टर पहले हम उस अल्काइल ग्रुप का नाम लिखते हैं जो कि ऑक्सीजन पे अटैच है, नॉट दैट अल्काइल विच इज अटैच ऑन कार्बन. ये कार्बन के साथ पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड काउंट करना है. सो फर्स्ट राइट द नेम ऑफ अल्काइल ग्रुप विच इज ऑन द साइड ऑफ ऑक्सीजन. सो दिस ईस्टर शुड बी कॉल्ड एज इथाइल एसिटेट ईस्टर. So this is how esterification between acetic acid and different alcohols will be taking place. So write this example. ये दोनों example question के साथ copy कर लो. Let's start now reaction of alcohol. Which involves the breaking of
COH बॉन्ड, अल्कोहल का COH बॉन्ड का जो ब्रेकिंग होता है, कार्बन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेकिंग इन्वॉल्व इन द फ्यू रिएक्शन ऑफ अल्कोहल। तो इसमें सबसे पहला रिएक्शन आता है रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स विथ हैलोजन एसिड्स। This reaction we have done in the previous chapter. If any alcohol is heated with halogen acids are HX, hydrogen iodide, or hydrogen bromide, or hydrogen chloride. Here we never consider hydrogen fluoride क्योंकि ये बहुत कम reactive है. No use. It will not be able to react with alcohol. So only this 3 halogen acids, जिसमें सबसे stronger है hydroiodic acid और सबसे weak है hydrochloric acid. So if halogen acids and alcohols are heated together, then there is loss of water, H2O. Acids अल्कोहल को बेटर लिविंग ग्रुप बनाता है और H2O OH ग्रुप इतनी आसानी से लॉस नहीं होता है, बट जब उसमें H+ ऐड हो जाता है इट बिकम्स वाटर, देन इट लीव्स इजीली और उसके प्लेस पे हैलाइड उसे सब्स्टिट्यूट करता है. सो इट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड द अल्काइल हैलाइड्स आर ऑब्टेन्ड. RX is obtained with the formation of water. तो इस केस में अल्कोहल का पूरा OH, सिर्फ H नहीं है, पूरा OH it separates apart. So it involves carbon and oxygen bond in the reaction of alcohol. ये reaction हमने पहले भी पढ़ा हुआ है. If you want to prepare alkyl iodide, then the acid required will be HI. If you required alkyl bromide, then the acid required will be HBr. If you required alkyl chloride, then the acid will be HCl, but being less reactive, it needs catalyst. इसमें anhydrous ZnCl2 as catalyst यूज किया जाता है because it is very less in the reactivity. अल्कोहल से रिएक्ट करने के लिए सिर्फ इस एसिड में कैटालिस्ट चाहिए, while these two this will not, it needs, HCl needs anhydrous, but they do not need any catalyst. They are more reactive than HCl. इनमें catalyst required नहीं होता है. इसीलिए ये जो मिक्सचर है HCl, it is always mixed with zinc chloride and then only it is used with the alcohol. So the mixture, if you remember, mixture of HCl plus anhydrous zinc chloride this mixture of HCl and anhydrous zinc chloride, it is also called as Lucas reagent. Lucas reagent is HCl dissolved in the zinc chloride and ये mixture alkyl halide से react करने पर, alcohol से react करने पर alcohol will change into alkyl chloride. So this is one of the reaction where oxygen and carbon bond of alcohol is broken. इसके examples अभी हम लोग एक एक करेंगे. So first of all, write this all. Pause the video and write it down. So if there is alcohol like ethyl alcohol, CH3, CH2OH, and somebody want to change it into ethyl iodide, but other person want to change it into ethyl bromide, और एक पर्सन है जो इथाइल अल्कोहल को इथाइल क्लोराइड में चेंज करना चाहता है. सो ऑल ऑफ देम विल जस्ट नीड डिफरेंट हैलोजन एसिड्स, द वन पर्सन will react
this ethyl alcohol with hydroiodic acid, and on heating the corresponding ethyl iodide will be obtained. The other person who wants ethyl alcohol to be changed into ethyl bromide, what he will be doing? Ethyl alcohol will be heated with hydrobromic acid HBr, and on elimination of water, on elimination of H2O, this is H, H2O is lost and ethyl bromide will be obtained, CH3 CH2Br plus H2O, and the third person will require HCl in presence of zinc chloride plus zinc chloride. He will require the mixture of Lucas reagent. So the third person, if the question comes, suppose कभी question आ भी गया, what is effect of Lucas reagent on ethyl alcohol, or what happens if Lucas reagent is heated with ethyl alcohol? So it is on heating. Then Lucas reagent से तुम्हें खुद समझ जाना है. Lucas reagent is halogen acid. Which halogen acid? HCl, hydrochloric acid, with the catalyst zinc chloride. So here the reaction will involve CH3 CH2OH, ethyl alcohol, and remember Lucas reagent HCl होता है. So it is HCl, and on the arrow we should write anhydrous zinc chloride. Zinc chloride, anhydrous means dry. It is the dehydrating agent. It helps in the removal of water faster. Water H2O quickly separate हो जाएगा. It will remove the water. So water is removed, and then ethyl alcohol will be changed into ethyl chloride. So Lucas reagent terms में clear लिखा नहीं होता है HCl, but you need to understand that Lucas reagent is HCl and zinc chloride. Zinc chloride will not react. It just helps in the separation of water. So write this. ये reactions लिख लो. Pause video and write it down. Now few more reactions were there जो हमने halogen derivative में पढ़ा था, जिसमें OH group को halogen से replace कर सकते हैं. This also involves same reaction where carbon and OH bond is broken. ये इसका first type हो गया. Then इसी reaction का second type, जिसमें इसीलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हाईली लिंक्ड होता है. जो भी रिएक्शन प्रीवियस चैप्टर में आते हैं वो आगे के चैप्टर में रिपीट होते हैं. सो इफ अल्कोहल रिएक्ट्स विथ फॉस्फोरस हैलाइड्स लाइक PCl3 और PBr3 और PI3, phosphorus trihalides, then also alcoholic group is replaced by corresponding halogens. So I will write just generally as PX3. PX thrice on heating. This PX3 can be which thing? PI3, PBr3 or PCl3. In all the cases, alcoholic group is replaced by halogen and RX is obtained. And remember, यहाँ तीनों halogen reactive है. So for one single molecule of PX3, the 3 molecules of ROH is needed. 3 times of ROH will be needed. सारे के सारे OH group को halogen replace करते जाएगा.
and then 3 times of alkyl halides will be obtained. Along with this, phosphorus will now combine with oxygen, hydrogen, oxygen, hydrogen, OH, OH, OH 3 times. 3 hydrogen, 3 oxygen. It generates H3PO3, which is phosphorus acid. So a single molecule of PX3, phosphorus trihalide, can convert three molecules of alcohols into corresponding alkyl halide. And same thing, to convert that into iodide, phosphorus triiodide will be needed. To convert alcohol into chloride, phosphorus trichloride should be needed. Then इसी में और एक कैटेगरी ऑफ रिएक्शन है, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद फॉस्फोरस पेंटाहेलाइड्स. पेंटाहेलाइड में सिर्फ और सिर्फ फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड स्टेबल होता है. फॉस्फोरस पेंटा आयोडाइड अनस्टेबल है. फॉस्फोरस पेंटाब्रोमाइड अनस्टेबल है. So they do not exist. Only and only phosphorus pentachloride is possible. And on heating, phosphorus pentachloride with the alcohol. Now we think that यहाँ 5 क्लोरीन है, so the coefficient will be made 5. But no, इसमें OH group जो है, इसके 5 chlorines are not able to replace OH group. Out of this 5, only 2 chlorines are reactive. This structure you have studied, PCl5 का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें फॉस्फोरस और 3 क्लोरीन काफ़ी स्ट्रांगली अटैच होता है. ये तीनों क्लोरीन मिलकर फॉस्फोरस के अराउंड में एक ट्राइंगल जनरेट करता है, और इसी ट्राइंगल पे परपेंडिकुलर ऊपर और नीचे 2 क्लोरीन एटम होंगे विच आर रिएक्टिव. सिर्फ ये 2 ही क्लोरीन है जो स्ट्रांगली रिएक्टिव है, नॉट ऑल 5. सो ओनली 2 क्लोरीन्स आर रिएक्टिव. नाउ हाउ रिएक्शन विल टेक प्लेस. सो दिस वाज अबाउट स्ट्रक्चर. सिर्फ 2 क्लोरीन रिप्लेस होता है, जिसमें से एक क्लोरीन OH ग्रुप को रिप्लेस कर देगा. इट गिव्स अल्कोहल टू अल्काइल क्लोराइड. अब यहाँ से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जैसे यहाँ से एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, फ्रॉम एवरी अल्कोहल इट कम्स आउट, सो इट इज ओनली 1 अल्कोहल मॉलिक्यूल. एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन रिलीज होगा. हाइड्रोजन विल इमीडिएटली कैप्चर दिस नेक्स्ट क्लोरीन टू फॉर्म HCl. एंड नाउ द रिमेनिंग एटम्स आर, अब वो जो फॉस्फोरस है उसमें 3 क्लोरीन तो रह गए, Cl, Cl, Cl. इसके 2 क्लोरीन का रिप्लेसमेंट हो गया है. एक क्लोरीन अल्काइल ग्रुप से अटैच है और एक क्लोरीन हाइड्रोजन से कंबाइन हो गया है. तो अब इसमें जो ऑक्सीजन अनबैलेंस है वो इसके साथ अटैच हो जाएगा एंड इट विल जनरेट POCl3 which is phosphorus oxychloride. Phosphorus oxychloride. So whenever a phosphorus trihalide is there, make coefficient of alcohol thrice, but when there is phosphorus pentahalide, alcohol remains 1, only 1. And in this case 5 में से 2 क्लोरीन, सिर्फ और सिर्फ 2 क्लोरीन रिमूव हो सकते हैं. 1 will replace alcoholic group, 1 reacts with hydrogen, and then remaining entity will be POCl thrice. ये रिएक्शन और एक रिएक्शन था जो इसी कैटेगरी का रिएक्शन है. फर्स्ट, ऑल ऑफ यू राइट दिस 2 इक्वेशंस. ये दोनों इक्वेशंस कॉपी कर लो. हाँ, देन सेम कैटेगरी का एक रिएक्शन है अमंग द अल्कोहल विच इज विथ थायोनिल क्लोराइड. सो द फोर्थ कैटेगरी ऑफ रिएक्शन ऑफ अल्कोहल which happens with SOCl2, thionyl chloride, and this needs pyridine as a solvent. In this reaction also OH group is replaced by chlorine. यहाँ 2 क्लोरीन है but don't make coefficient wise because एक क्लोरीन एटम OH को रिप्लेस करेगा और एक क्लोरीन एटम यहाँ से हाइड्रोजन फ्री होता है उससे कंबाइन हो जाएगा.
So the one product will be RCl and the other product will be HCl, common. Now the left part is here only sulfur and oxygen, और यहाँ से एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन OH ग्रुप से रिलीज होता है. So the oxygen will combine with sulfur oxide to give SO2Is. So all these reactions are very same, in which OH group breaks from carbon. कार्बन से OH ग्रुप सेपरेट हो जाता है और उसके प्लेस पे हेलाइड 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 एंड हेलाइड इज अटैच. लास्ट टू रिएक्शंस आर फिक्स फॉर ओनली क्लोराइड, और फर्स्ट टू में हेलाइड कैन बी आयोडाइड, ब्रोमाइड और क्लोराइड, आयोडाइड, ब्रोमाइड और क्लोराइड. तो ये सारे के सारे रिएक्शंस जो है दे इन्वॉल्व्स कार्बन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड्स ब्रेकिंग अपार्ट. ये सब सेम टाइप के रिएक्शन है. सो तुम लोग ने ये तो लिखा हुआ ही है, ये 3 रिएक्शंस अच्छे से कॉपी करके ले लो. वॉच वीडियो एंड राइट इट डाउन. So now we saw there are few reactions when OH group is separated and replaced by halide, तो कार्बन एंड OH ग्रुप बॉन्ड ब्रेक होता है. जो अभी हमने कैटेगरी पढ़ी अल्कोहल्स का OH ग्रुप, ये जो OH ग्रुप है ये किससे रिप्लेस हो सकता है? इट कैन बी रिप्लेस्ड बाय हैलाइड एंड देयर आर मेनी रिएजेंट्स फॉर इट. कौन कौन से रिएजेंट है? हैलोजन एसिड्स है, उनसे ये चेंजेस हो सकता है. फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड्स है, वो ये चेंज कर सकते हैं. फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड है, और या फिर थायोनिल क्लोराइड है, विच कैन रिप्लेस OH ग्रुप विथ हैलाइड. देन इसी कैटेगरी का जो दूसरा रिएक्शन है, ये हो गई एक कैटेगरी वेयर कार्बन एंड OH ग्रुप बॉन्ड ब्रेक्स अपार्ट. दूसरा जो कैटेगरी का रिएक्शन आता है वो है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल. ये सब था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जिसमें कोई ना कोई हैलाइड ग्रुप जो होता है वो OH ग्रुप को रिप्लेस करता है. तो ये सब कौन सी कैटेगरी थी? न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन. एज यू ऑल नो हैलाइड इज न्यूक्लियोफाइल. ये नेगेटिव पार्ट पॉजिटिव अल्काइल पे अटैक करेगा और OH माइनस विल बी रिमूव. यानी एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल को अल्कोहल में से रिप्लेस कर रहा है. दूसरा जो कैटेगरी है फॉर दिस काइंड, इट इज डिहाइड्रेशन. डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स दो तरह का होता है. इफ आई टेक इथाइल अल्कोहल एज एन एग्जाम्पल, CH3 CH2OH, correct? Ethyl alcohol structure can also be drawn like this. दो कार्बन, एक कार्बन पर OH ग्रुप है और एक हाइड्रोजन है, ये दूसरा हाइड्रोजन आ गया, और दूसरे कार्बन एटम पर H and H present है. So dehydration is loss of water molecule, and for dehydration, dehydrating reagent like concentrated acids, sulfuric acid, which removes water from these organic compounds are required. So if it is heated up to 443 Kelvin temperature, then एक कार्बन का OH ग्रुप और जस्ट बाजू वाले कार्बन से H का रिमूवल होता है. There is loss of H2O from alpha beta कार्बन. एक कार्बन OH ग्रुप वाले कार्बन को अल्फा और उसके बाजू वाले कार्बन को हम बीटा कार्बन बोल सकते हैं. So there is loss and it gives CH2 double bond CH2 plus H2O. ये हो गया dehydration of alcohol. It is alpha beta elimination also. ये elimination reaction है, इसे हम alpha beta elimination बोल सकते हैं. एक दूसरा भी dehydration of alcohol है, which is quite different. If dehydration requires 2 molecule of alcohol, जैसे ये तो एक ही मॉलिक्यूल है और उसी से डिहाइड्रेशन हो रहा है. अगर इथाइल अल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल्स हो, CH3 CH2OH प्लस
one more ethyl alcohol molecule which will be OH CH2 CH3. The same dehydrating reagent is required there also. वहाँ पर भी dehydrating reagent required होता है, concentrated sulfuric acid, but temperature is very different. The same Kong H2SO4 is being taken, but at low temperature 413 Kelvin. तो dehydration पूरा temperature का खेल है. High temperature will yield alkene. Now this dehydration, water is lost among two molecules. एक group, एक अल्कोहल का OH और दूसरे अल्कोहल का just H रिमूव होता है, and water is separated as usual, H2O, and now the product obtained will be CH3CH2 bonded with O CH2CH3, CH3CH2 O CH2CH3. So product becomes quite different. High temperature है तो अल्कीन फॉर्म होता है, एंड अगर डिहाइड्रेशन लोअर टेम्परेचर पर है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ईथर जनरेट होता है. सो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में टेम्परेचर का बहुत इंपॉर्टेंस है. टेम्परेचर शुड बी वेरी मच क्लियर फॉर डिहाइड्रेशन. दिस डिहाइड्रेशन नीड्स ओनली वन मॉलिक्यूल. इट इज वाई इंट्रा विद इन अ मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल से OH और H दोनों सेपरेट हो रहा है, इसलिए मैं इसको नाम दूंगा इंट्रा मॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन. इंट्रा मॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन. और ये जो डिहाइड्रेशन है इसमें दो मॉलिक्यूल है. जैसे अगर दो कॉलेज में मैच होता है तो उसको इंटर कॉलेज कंपटीशन बोलते हैं, और एक ही कॉलेज में 11th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड, एक ही कॉलेज के दो डिवीजन का मैच या कोई कंपटीशन हो तो उसको इंट्रा कॉलेज कंपटीशन बोलते हैं. इंटर कॉलेज में अलग अलग कॉलेजेस आते हैं और इंट्रा कॉलेज में एक ही कॉलेज के स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं. तो ये इंट्रा मॉलिक्यूलर है क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल के दो एटम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और यहाँ दो अलग अलग मॉलिक्यूल हैं, इसलिए रिएक्शन विल बी अकॉर्डिंगली intermolecular dehydration. So the dehydration of alcohol is also the case where carbon and oxygen bond break होता है. You can see that यहाँ पे कार्बन का और OH ग्रुप का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है. नीचे के रिएक्शन देखो, इसमें एक मॉलिक्यूल में कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड और दूसरे मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, यानी दोनों टाइप के रिएक्शन इसमें इन्वॉल्व है. और इंट्रा मॉलिक्यूलर में सिर्फ कार्बन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड, OH बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा है. सो दिस इज ऑल्सो द केस which is the reaction involving carbon and oxygen bond breaking. All of you copy this also. ये अब तक हमने जो रिएक्शन पढ़े हैं उनको याद रखने का ट्रिक है. If these reagents are there, then alcoholic group halide से replace हो जाएगा. If concentrated sulfuric acid is added in the alcohol at high temperature, then intramolecular dehydration होगा. If reaction is done at low temperature, then intermolecular dehydration होना है. So write this down. Students, let us discuss ethyl alcohol change to alkene. मतलब इसमें अल्फा कार्बन एटम से OH ग्रुप और यहाँ पर जो बीटा कार्बन एटम है उससे एक हाइड्रोजन सेपरेट हुआ है. दिस यू कैन राइट एज CH2H. तो ये H और OH रिप्लेस हो रहा है, रिमूव हो रहा है सॉरी, और बीच में अनसैचुरेशन डबल बॉन्ड आ गया है. तो ये जो रिएक्शन है उसका हमें मैकेनिज्म डिस्कस करना है. वी आर गोइंग टू डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन. इट इज नथिंग बट एक ही मॉलिक्यूल से OH H वाटर पूरा रिमूव हो रहा है. तो ये पूरा इंट्रा मॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन है. So what is mechanism of this reaction? कैसे water, कैसे H2O generate होता है, in which step, how it is separated? Let us see sulfuric acid का इसमें क्या रोल है. तो reaction start कैसे होता है?
see the first step is that CH3, CH2 and OH group. In this OH group I am showing bond. यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक बॉन्ड है एंड ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं. सो इवन इट इज न्यूट्रल बट उसमें 4 इलेक्ट्रॉन यानी 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अनबॉन्डेड है. और एसिड जो कि कैटालिस्ट है उसका H+ आयन दिस नीड्स इलेक्ट्रॉन सो इट कैन इजीली अटैक ऑन एनी ऑफ दिस लोन पेयर. तो ये वो एसिड यानी कैटालिस्ट है एंड यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस H+ आयन को डोनेट होता है. मतलब ऑक्सीजन एंड H+ में एक नया बॉन्ड जनरेट हो जाता है वेयर इलेक्ट्रॉन ओनली कम्स बाय ऑक्सीजन एटम. इस बॉन्ड में सिर्फ ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन का यूज होगा. दैट्स व्हाई आई हैव शोन एरो ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम ऑक्सीजन एटम टू द हाइड्रोजन आयन. सो इट फॉर्म्स CH3, CH2O एंड इस पे एक H तो अटैच था ही और एक H हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा. अब इसके 2 लोन पेयर में से एक लोन पेयर बॉन्ड बनाने में यूज हो गया. जस्ट एक ही लोन पेयर बचा हुआ है यानी अब ऑक्सीजन पे 3 कोवैलेंट बॉन्ड है. 1 2 पहले से 2 थे, एक थर्ड कोवैलेंट बॉन्ड आ गया तो ऑक्सीजन एटम क्विकली पॉजिटिव बन जाएगा. इट विल एक्वायर प्लस चार्ज. ये प्लस चार्ज हम यहाँ भी लिख सकते हैं. अब लोन पेयर बताने की जरूरत नहीं है. सो ये अपनी कैपेसिटी से ज्यादा बॉन्ड बना रहा है यानी ये पॉजिटिव हो गया. इसको बोलते हैं प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल. H+ आयन इज नथिंग बट प्रोटॉन. हाइड्रोजन का न्यूक्लियस जो होता है जब हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस बचता है उसे प्रोटॉन बोलते हैं. एंड दिस प्रोटॉन इज एब्स्ट्रैक्टेड. ये मैंने डिस्कस भी किया था कि H+ आयन कभी भी फ्री नहीं रह सकता इन द आयोनिक इक्विलिब्रियम. तो क्विकली वाटर में भी ऑक्सीजन पे ही ट्रांसफर होता है और अल्कोहल में भी ऑक्सीजन के लोन पेयर पे ट्रांसफर हो जाएगा. दिस मेक्स अल्कोहलिक ग्रुप अ बेटर लिविंग ग्रुप. अब ये जो पॉजिटिव ऑक्सीजन है जब इसके पास इलेक्ट्रॉन कम पड़ गए तो ये क्या करेगा, अपने बाजू वाले कार्बन से जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है उनको जोर से खींचेगा. क्योंकि इसका लॉस हुआ है तो ये अपनी लॉस को बाजू वाले एटम से पूरा करने की कोशिश करेगा. सो इन द सेकेंड स्टेप this CH3, CH2 and OH as it is positive oxygen and this positive oxygen now it can do ये जो कार्बन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड है ये अपनी तरफ खींचेगा. it will try to get it back और इस तरह से ये न्यूट्रल वाटर बनकर अलग हो सकता है. so it will just form HOH वाटर. अभी इसमें सिर्फ एक लोन पेयर था और बॉन्ड टूट जाएगा तो फिर से इसके ऊपर 2 लोन पेयर जनरेट हो जाएंगे. इन दिस केस कार्बन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड टोटली ब्रेक हो रहा है तो पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन से कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा एंड वी विल गेट CH3, CH2 प्लस द कार्बोकेटायन. सो यू रिमेंबर हाँ, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में प्लस चार्ज का फ्लो होता है. पहले प्लस चार्ज कौन से एटम पे था, हाइड्रोजन. अगर ऑक्सीजन उसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करे तो प्लस चार्ज ऑक्सीजन पर आ जाएगा. हाइड्रोजन से ऑक्सीजन पे आया. अब अगर कार्बन का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले ले तो प्लस चार्ज विल शिफ्ट फ्रॉम ऑक्सीजन टू कार्बन. द कार्बोकेटायन इज फॉर्म एंड देन इन द थर्ड स्टेप दिस कार्बोकेटायन, इस कार्बोकेटायन पे जो अल्फा कार्बन है एज यू नो उसका प्लस H यानी हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट है. तो इसमें से कोई भी एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा और इसके बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कार्बोकेटायन के चार्ज को बैलेंस करने में यूज हो जाते हैं. मतलब ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कार्बन कार्बन में शेयर हो जाएंगे और ये जो हाइड्रोजन है इट विल गेट फ्री एज एटम विदाउट एनी इलेक्ट्रॉन. So it will change into CH2 bonded with CH2. अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन लॉस कर रहा है तो पॉजिटिव चार्ज फिर से हाइड्रोजन पर आ जाएगा. सो इन द लास्ट स्टेप फिर से H+ जनरेट होता है यानी जो भी एसिड इस रिएक्शन को स्टार्ट कर रहा था वो लास्ट में आके रिप्रोड्यूस हो जाएगा. इसलिए
सल्फ्यूरिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होता है, इट रिमेन्स कॉन्स्टेंट. एंड दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप. यहाँ पर हीटिंग रिक्वायर्ड है टू ब्रेक द बॉन्ड और सेपरेट वाटर एज अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल, टू ब्रेक बीटा कार्बन से, बाजू वाले कार्बन से हाइड्रोजन आयन लॉस करने के लिए. तो इस तरह से 3 स्टेप्स में अल्कोहल अल्कीन्स में चेंज होता है. अल्कोहल का OH ग्रुप उतनी आसानी से चेंज नहीं होता, सेपरेट नहीं हो सकता है, लेकिन उसमें एसिड कंबाइन हो गया, सो इट बिकम्स अ बेटर लिविंग ग्रुप. O पॉजिटिव इज बेटर लिविंग फ्रॉम द कार्बन चेन एज कंपेयर टू न्यूट्रल ऑक्सीजन. न्यूट्रल ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड इतना आसानी से ब्रेक नहीं होता है, बट पॉजिटिव ऑक्सीजन एंड कार्बन का बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो सकता है. सो दिस इज द रोल ऑफ एसिड H+ टू मेक अल्कोहल अ बेटर लिविंग ग्रुप. लिविंग ग्रुप मतलब जो आसानी से कार्बन चेन से निकल जाए. सो ऑल ऑफ यू ये मैकेनिज्म लिख कर ले लो, राइट इट डाउन.